Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. And जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे, this must be 10th of June, and this day is very much special for me. And now you may ask why? Because जब आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, I will be giving my last semester exam, and yes, after that I will be graduated. Finally, my graduation is about to complete. So basically, this video is all about my sharing overall experience about my internship. I will be answering about total number of internship I done, from where I did get all the internship, my experience from each one of them, and how you can get your dream internship. So without any further ado, let's get into the video. Okay, so सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा background दे देती हूँ. So I have done my bachelor's of business administration. Total internship I have done is 3, technically 4. बट जो फर्स्ट वाली इंटर्नशिप मैंने की थी व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट और सेकंड ईयर आई गेस, तो मुझे याद नहीं है. एंड अपेरेंटली मुझे ये पता चला कि दैट कंपनी वाज अ फ्रॉड. सो उन्होंने मुझे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं दी थी, बीच में उनका कुछ कंपनी का इशू हो गया था, पता नहीं क्या था. सो आई एम नॉट गोइंग टू काउंट इट. एंड आफ्टर दैट आई हैव दैट टोटल 3 इंटर्नशिप. सो लेट्स टॉक अबाउट ईच वन बाय वन. तो सबसे पहले इंटर्नशिप मैंने की थी which is in Dr. Harrow's Wellness, and its legal name is Dava Miracle, which is in Greater Kailas. This was my first exposure to the corporate world, and this internship was mandated from my college. It was more like a summer internship, and मुझे ये मैंने खुद ही क्रैक की थी from off campus. On campus भी मुझे like 3-4 इंटर्नशिप आई वॉज एबल टू क्रैक इट, बट वो काफी ज्यादा दूर नोएडा में था. बट देन आई डिसाइडेड नॉट टू परस्यू देम बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. ओनली कंपनी ऐसी थी कि मैंने उनका कभी नाम भी नहीं सुना था. ऑल्दो मैंने डवा मिराकल का नाम भी नहीं सुना था, बट देन when I went there for my interview, so वहाँ के स्टाफ मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगी. People were very nice and welcoming, so I felt there was a sense of trust. So when I went there ना, मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ. एंड सेकेंड थिंग आई ऑप्टेड फॉर डवा मिरेकल was because I was supposed to work under a female manager. Now, it's not that I'm not comfortable working with men or working under male manager, but the thing was, since it was my very first internship, so I was like very much nervous, very much scared at that time, because this was my very first exposure. So I was like hoping कि कोई female manager या फिर female employees ही हो जिनके साथ मैं काम करूँ, सीखूँ, and then eventually I will be more comfortable with all the male employees as well. ठीक है. सो मेरी जो सबसे पहली मेंटर थी दैट वाज प्रिया मैम, एंड उनके साथ मैंने कंपनी में काम किया. शी वाज रियली लाइक शी वाज सच अ स्वीट पर्सन ना. जब मैंने इंटरव्यू में उनको बताया था कि दिस कंपनी ना वाज लोकेटेड इन ग्रेटर कैलाश, ठीक है. सो दिस वाज ऑल्सो वेरी फार फ्रॉम माई होम. लाइक पास कुछ पिक्चर्स भी होंगी, आई विल बी अटैचिंग जस्ट फॉर द मेमोरीज. सो व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट द डिस्टेंस पार्ट, सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 6 days वर्किंग के बजाय उन्होंने बोला कि यू कैन कम फॉर 4 days, एंड उन्होंने मेरे वर्किंग आवर्स भी कम कर दिए थे बाय 1 hour. सो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी थी. एंड उन्होंने मुझे लाइक लिटरली शी वॉज अ वेरी फर्स्ट मेंटर इन माई लाइफ, एंड उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी. हम साथ में बैठते थे, एंड इट वॉज सच अ beautiful experience I had. And thank you so much, Priya ma'am. I know you are watching this video, and thank you so much for being such a good and first mentor in my life. And yeah, thank you so much. You are best. Now, coming to my second internship, which was in BioPetrochem. It's a wastewater treatment company, and its head office is located in Gautam Sector 17, very near to my home. Now, in this company, I got exposure the most, a lot, because here I was doing a lot more than just recruitment. Here I was involved in employee engagement, documentation, onboarding, offboarding, then strategy, negotiation. I was a part of each and everything, and I learned like if I compare ना तीनों internship का, तो सबसे ज़्यादा मैंने BioPetrochem में सीखा है. So here I was working with दीप्ति मैम एंड दीक्षा मैम. वो दोनों भी बहुत अच्छे थे, बहुत लाइक
नाउ आई फील आई एम सो लकी, लाइक मैंने जितने भी कंपनीज में इंटर्नशिप की है वहाँ के लोगों का मैं नहीं बता सकती, बिकॉज जिनके साथ मैंने काम करा और जिनके अंडर मैंने काम करा है ना, दे ऑल वेर सो नाइस. आई लाइक इन दिस एस्पेक्ट आई फील और आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी. द मैम वॉज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी. जब उनको मैं देखती हूँ तो एक लीडरशिप पोजीशन में पहुंचना, द वे शी टॉक्स, द वे शी लाइक स्ट्रैटेजाइज, शी इज अ लीडर गाइज. कर रही हूँ कि मेरी उनके साथ एक भी फोटोज नहीं है. कल मिलने जाऊंगी तो मैं फोटोज लूंगी उनके साथ, बट शी इज ग्रेट पर्सनैलिटी. नाउ द ड्यूरेशन की बात करें तो इट वॉज फॉर अप्रॉक्सीमेटली फॉर 3 months एंड यस इट वॉज पेड. First internship was also paid, second was also paid, and the third comes to physics wala. Now physics wala, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि I will get an opportunity to work with PW, because PW is such a big brand. मतलब ऐसा सोचा नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि I was missing out something और मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था. 1 week ही हुए थे मेरी सेकंड इंटर्नशिप को कंप्लीट करे हुए. So I was a little in relaxed mood, but I was also searching for the internship, good opportunity, good internship in a good company. मेरा कोई प्लान नहीं था to go for the third internship till or unless I get an opportunity to work with a big company, a big brand. इसी ड्यूरेशन में I also applied for Tech Mahindra for an HR intern, which was unpaid, but मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था. And the location was Noida also. उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा because Tech Mahindra, you know. So मैंने अप्लाई किया था. Then 2-3 rounds of telephonic round of interviews हुए, and after that I get selected. And like at that time I literally thought कि इतना क्या है खास मेरे में, मैं Tech Mahindra जैसी कंपनी में like I get selected. बट ड्यू टू सम रीज़न वो कुछ NOC का चक्कर हो गया था फ्रॉम माई कॉलेज, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी. बट देन नेवरदलेस उससे मुझे अपनी पोटेंशियल के बारे में भी पता चला. एंड यस, नाउ इसी दौरान मैंने लिंक्डइन पे अदिति मैम का पोस्ट देखा था फॉर लाइक दे वर लुकिंग फॉर एन HR इंटर्न फॉर द 3 months. मैंने रैंडमली ऐसे उनका पोस्ट देखा था, उन्होंने अपनी email ID मेंशन की हुई थी, एंड आई जस्ट रैंडमली ईमेल्ड हर शेयरिंग माई CV एंड ऑल. एंड यू वोंट बिलीव इट, क्या हुआ था. मैंने उनको आई थिंक 6 PM अराउंड 6 PM पे उनको मेल किया था, एंड आई गॉट एन इमीडिएट कॉल एट 6:05. यू वोंट बिलीव इट, राइट. एंड उनसे मेरी थोड़ी सी बात हुई. देन उन्होंने मुझे नोएडा ऑफिस बुलाया था फॉर फेस टू फेस राउंड. फिर मैं गई PW. एंड उसके बाद उस दिन मेरे आई थिंक, मैं फिर यहाँ देख रही हूँ, उस दिन मेरे आई थिंक 3 rounds ऑफ इंटरव्यूज चले थे, एंड आई वॉज लिटरली वेरी नर्वस. एंड मेरे इंटरव्यूज एंड होने के बाद लाइक आई वॉज लिटरली इन अ शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है. और PW मेरा भाई, उसने JEE प्रिपेयर किया था, तो उन्होंने PW का बैच लिया हुआ था. एंड मेरा भाई अलग सर का इतना बड़ा फ़ैन है ना, उनके मीम्स देखते रहते हैं, एंड आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम, सच अ बिग ब्रांड. तो आई वॉज सो हैप्पी. मैंने सबसे पहले ऑफिस से निकलते ही अपनी मम्मी को कॉल किया था, एंड शी वॉज ऑल्सो हैप्पी. बट सब कुछ अच्छा हो जाए मेरी लाइफ में, इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइज. नाउ एक प्रॉब्लम थी, विच वॉज डिस्टेंस. As of now, you must be knowing I live in Dwarka, right? So Dwarka to Noida city center, like literally from one end to another end. So true, North Pole to South Pole. And मुझे if I accept the offer letter and join the company, तो मुझे per day 5 hours of traveling करनी होगी if I calculate both the आने जाने का टाइम. ठीक है, मेरी मम्मी ने मना नहीं किया था, उन्होंने बोला कि देख लो तुम्हें करना है. आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, बिकॉज तुम्हारा कॉलेज है, फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम है, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो सोच लो. इन अ वे उन्होंने मना कर दिया था और वार्न कर दिया था कि तुम्हारा डिसीजन है, बट हमारी तरफ से कि आई डोंट थिंक कोई फीजिबल है. मेरे दोस्तों ने मना कर दिया था कि सिमरन नहीं होगा, प्लीज़ देख लो, मतलब मैं तो नहीं कर पाऊँगी अगर मुझे ऐसा मिलेगा अपॉर्चुनिटी तो. लेकिन मैं तो ठहरी भाई, सब हो जाएगा, बस CV में नाम दिखना चाहिए, मैं सब कर लूँगी. एंड वही क्या मैंने, एंड आई एक्सेप्ट द ऑफर लेटर. नाउ एनी विच वेज, जब आप यू देख रहे होगे तो मेरी इंटर्नशिप भी PW में एंड हो चुकी होगी, एंड माई लास्ट वर्किंग डे वॉज 6th of June इन PW, एंड द ड्यूरेशन वॉज फॉर 3 months. वहाँ पे
मैं आदित्य नाम के अंडर में काम कर रही थी एंड शी लिटरली वो मेरी एल्डर सिस्टर की तरह थी। कुछ भी अगर ऑफिस में मुझे लगता था मैं वैसा क्यों है, मैं वैसा क्यों है, एंड मुझे बैठ के लिटरली सारा काम छोड़ के मुझे समझाती थी कि तुम ऐसा है वैसा है, तुम्हें कोई ऐसा बोले तुम वैसा बोलना, सबके सामने ये नहीं बताना है। लाइक शी वॉज लिटरली गाइडिंग मी। अगर वो नहीं रहती तो आई डोंट नो हाउ टू, लाइक अगर वो और सौम्या नहीं रहती और डिम्पल मैम भी, तो आई डोंट नो ये इंटर्नशिप बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता मेरे लिए। बट या आई एम लकी, आई सेड यू राइट। दिस वाज माय इंटर्नशिप ओवरऑल एक्सपीरियंस। नाउ कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं एंड लेट्स सी। सो मैंने माय कोर्स नेम बीबीए बता दिया। मैंने यहाँ पे कुछ ये क्या बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं सो दैट मैं कुछ भूल ना जाऊँ। टोटल इंटर्नशिप आई हैव डन 3। 1 इज इन डर्मा मेडिकल, सेकेंड बायोपेट्रिकली, थर्ड फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। Now, from where did I get all the 3 internship? मुझे तीनों इंटर्नशिप लिंक्डइन के थ्रू मिली थी। लिंक्डइन इज बेस्ट गाइस। जाओ अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपडेट डालो, जॉब सर्च करते रहो। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि आप 10 जगह अप्लाई करोगे तो आपको हम हर जगह से रिवर्ट आएगा ही। आप अपना माइंड बना के चलो कि इफ यू आर अप्लाइंग इन 10 कंपनीज यू विल गेट रिवर्ट फ्रॉम 2 कंपनीज ओनली। सो ऐसा ही आप ट्राई कर सकते हैं। सो मतलब द पर्पस बिहाइंड सेइंग इट कि आप गिव अप मत करो, आप अप्लाई करते रहो, यू विल बी एंड अप हैविंग समथिंग गुड इन योर हैंड। सो या थर्ड, मैं तीनों मेरी इंटर्नशिप पेड थी एज आई सेड। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस वेदर यू शुड बी डूइंग अनपेड इंटर्नशिप और नॉट। देखो, अगर मुझसे कोई पूछे तो आई विल बी सेइंग 2 थिंग्स ओनली। अगर तुम्हें अनपेड इंटर्नशिप मिल रही है तो 2 चीज़ देखो। लाइक दिस इज माई परस्पेक्टिव, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी करेक्ट, ठीक है। सो अगर आपको अनपेड इंटर्नशिप मिल रही है तो सबसे पहले आप ये देखो जिस कंपनी में आपको इंटर्नशिप मिल रही है अगर वो लाइक रेपुटेड और रिनाउंड कंपनी है, लाइक इन्फोसिस, टेकमाइंड, जेप्टो, स्विगी, जो भी एल्टिया, माइंडट्री, जो भी कंपनीज हैं, अगर ये सारी कंपनीज में आपको मिल रही है अनपेड इंटर्नशिप सो आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लो। और अगर ऐसी कंपनी है कि उतनी बड़ी नहीं है, सभी नहीं जानते उनको, उस ऐसी कंपनीज को जिसको सब नहीं जानते हो, तो आप एक चीज़ देखो कि अगर वो आपके घर के पास है, लाइक जहाँ भी आप रहते हो, अगर घर के पास है वो ऑफिस तो आप ले लो, एक्सेप्ट कर लो, आप कर लो अनपेड इंटर्नशिप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका वैसे ही कम होगा एंड यू विल बी लाइक हैविंग एक्सपीरियंस, राइट। एंड एट लास्ट एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। सो यस, और अगर कंपनी उतनी बड़ी भी नहीं है प्लस वो आपको अनपेड इंटर्नशिप दे रही है सो देयर इज नो पॉइंट कि आप दिन के 5 घंटे ट्रैवलिंग करके आप ऐसे कंपनी में इंटर्नशिप करो जहाँ पे आपको ट्रैवल एक्सपेंस भी नहीं मिल रहा है। सो या talk about the importance of internship. So listen, this is the precious time. आपने 2-3 इंटर्नशिप लाइक मिनिमम 2-3 इंटर्नशिप कर रखी है एंड यू आर गुड एट योर फील्ड, आपको एक्सपीरियंस है, तो ट्रस्ट में जब आपकी प्लेसमेंट होगी ना आपको कोई डर नहीं होगा। आपको प्लेसमेंट लेने में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इशू नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज यू विल नॉट बी फील स्कैर्ड, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड this will like automatically will enhance your personality because भी आप किसी कंपनी में काम करते हो, you will be meeting different people, right? So you will be knowing how to interact with others, किससे क्या बातें करते हैं, क्या थोड़ी सी डिप्लोमेसी दिखानी पड़ती है, कहाँ हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। सो यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आ रहा बिकॉज जब मैं प्लेस होगी तब बताऊँगी कि हाउ दिस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हैज हेल्प्ड मी। Now, last thing which I want to address it here is that now since I have worked in HR department, so sometimes क्या होता है कि हम अप्लाई तो मल्टीपल जगह करते हैं, राइट। हमारा प्रोसेस भी ऑनगोइंग होता है, अब हमें लगता है कि बस मेरा हो जाएगा। समटाइम्स क्या होता है, अरे यार कितना ठक समटाइम्स लाइक आई डोंट नो इफ यू हैव गॉन थ्रू इट नॉट। क्या होता है कि हम मल्टीपल जगह अप्लाई करते हैं, वेदर इट इज़ जॉब और इंटर्नशिप और एनीथिंग, ठीक है, और कई जगह से हमें रिवर्ट नहीं आता है, फिर हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू मल्टीपल राउंड्स, राइट। तो उस केस में हमें ये नहीं सोचना है कि आई थिंक मेरे में कुछ कमी होगी। येस, दिस इज अ फैक्ट कि आप इतना भी सीख लो, ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है. समटाइम इट इज़ ऑल्सो अबाउट टाइमिंग, अबाउट योर लक. आपसे पहले किसी और ने अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन हो गया. किसी का लोन है, रेफरल हो गया, किसी ने रेफर कर दिया तो उनका सिलेक्शन हो गया. तो सिलेक्शन हो गया बट आपको इन्फॉर्म करना भूल गए, तो आपने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया. तो ये सारी चीज़ें होती रहती है. सो इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज कि आपको आप किसी चीज़ में कम हो. इट्स जस्ट अबाउट राइट टाइमिंग, योर लक. एंड यस, सो स्टॉप डिसअपॉइंटिंग योरसेल्फ. यू आर ग्रेट. दैट वॉज इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. And thank you so much for watching till here. And yeah, bye bye. Take care. See you soon in the next video.